Hello, everyone. Welcome to another talk show with ABCD Learning Never Ends, Mental Health Awareness. So, today I am your host, Shakshi Jain, and we'll be talking about mental health awareness and children and how children act in the education field. And to better able to guide you and tell you how it is in that setting, we have with us very esteemed guest, Miss Anju Rakhera, who has been a part of the education field for quite a few years and senior most teacher from Kendriya Vidyalaya school right here with us. I can't in words I cannot tell you more about her. So let's hear from her. Welcome Anju ma'am. Thank you so much from the bottom of my heart. It's really a pleasure to talk on such issues because there's always a stigma. People they hesitate to speak on such issues, and generally people they have a one idea that physical health. What about this? 80 million आपके जो neurons काम कर रहे हैं, they don't care for such. Now the time has come to talk on such issues so that the people might come up. They may open themselves. So lovely that we could have teachers like you who are teaching our young minds, who are sensitizing them to so many issues, guiding them to grow and develop and make careers, flourish in the field, have talk about these stuff, because most of the teachers also, if they start being stigmatizing things like this, how will we actually grow, how will everyone understand? It is a very difficult and a crucial issue. And moreover, I have been an ardent admirer and going to the NABs also. NAB in Faridabad also and NAB in Delhi also. Right. NAB is in Sector 5 and our school was in Sector 4. National Association of Blind School. So number of school students they used to come to study in Kendriya Vidyalaya number 4. So I have closely watched and seen their problems. How they are, means not problems. Although they may have the disability, but they never show they have the disability. They are never differently able children. Kind of a courage, kind of a empathy, kind of a support system these people they have, the students. Such a marvelous thing when you watch them in the classroom or in the assembly ground. When they talk, when they laugh, they sing bhajans, they're very good. How can we stigmatize them? These children, they cannot do anything. These children are far better than those children, those who are having the eyes. Because I would like to quote one thing more in 2016, in Right. class 12 CBSE board exam, my humanities team student Mamta, she topped in CBSE. Can you That's so imagine? great. In Not really. CBSE board exam, taking the subjects of pol science, history and geography, Hindi, English. Right. तो मैं तो इन बच्चों के साथ मेरा तो अभिन्न नाता रहा है, चाहे वो फरीदाबाद में हो या दिल्ली में हो. एंड whenever we used to go for the donations, इतने सिंपल है मैम, आप जो चाहो आप कर दो. दे डोंट हैव एनी हायर एस्पिरेशंस और डिजायर्स आल्सो. मैं तो देखती हूँ नॉर्मल बच्चों के अंदर इतनी ग्रीड है, ये बच्चे इतने सेल्फ कॉम्प्लेसेंट हैं. दे आर द रोल मॉडल्स फॉर ऑल ऑफ अस. अभी मैं आपको इसी Yeah. दौरान बताऊंगी बहुत सारे ऐसे बच्चों की बातें जिन्होंने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना के रखा हुआ है. अभी आपको बताया मैंने वन किस्सा. एंड हैट्स ऑफ टू ममता हु हैज टॉप इन क्लास 12. नॉर्मल बच्चे को हम क्या सिखाएंगे? जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है. जी. और इतने हमारे वीआई बच्चे हैं या साइको मोटर वाले बच्चे हैं या और भी जितने भी डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, चाहे वो क्रूचस पे आ रहे हों, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो तो वी द पीपल हैव स्टिग्मेटाइज. और हम जो स्टिग्मा लगा Exactly. देते हैं ना और कह देते हैं इसके अंदर वो योग्यता नहीं है, पर वो योग्यता उनके अंदर तो जन्मजात है. जी. दैट इज गिवन बाय द गॉड लाइनेज. और उनका जो सिक्स सेंस काम करता है वो किसी में काम नहीं करता. हम आपस में किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन ये इनकी जो टोली चलती है ना, दे कीप देयर फिंगर्स क्रॉस, पकड़ के चलते हैं एक दूसरे की शर्ट पकड़ के. एंड दे क्रॉस एवरीवेयर, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, फ्रॉम गोइंग अप टू द स्टेयर्स एंड कमिंग डाउन. कहीं चोट नहीं लगती इनको. हम जैसे लोग बोलते हैं ना, सिंपथाइज करते हैं, अरे बेचारा. दे डोंट रिक्वायर दिस थिंग, दे रिक्वायर ओनली जेस्ट ऑफ लाइफ. Exactly. Exactly. तो मैम, वन क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू इज कि आपको क्या लगता है बच्चों की एजुकेशन में, बी इट समवन विद सम काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स और बी इट नॉर्मल किड्स,
उनकी एजुकेशन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आज की एज में बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर कीन एजुकेशन की हम बात करते हैं, गया वो जमाना जब आपको एकेडमिक एक्सेलेंस चाहिए, आपको 98 परसेंटाइल चाहिए, नो नीड. If you have cracked simple exam with a 75% and you can go for any competitive exam. इसके अलावा education is not learning of facts, not Right. learning of data or information assimilation. Education तो है ही नहीं ये. जी. Education is all about holistic approach. अब मैं राइट. बताती हूँ होलिस्टिक अप्रोच क्या है. जब आपका इमोशनल माइंड, दिस इज माइंड, दिस इज हार्ट, ये अलाइनमेंट में आ जाए तो हम कहते हैं इमोशनल क्वोशंट. अगर ये आपका बराबर है और आपको लाइफ स्किल्स पता है, इट मे बी अ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, इट मे बी एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चनिंग, आप किसी चीज के प्रॉस एंड कॉन्स को किस तरह से एनालाइज करते हैं, अगर ये खूबियां आपके अंदर आ जाएं, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड, ये चीजें जो हमारी टाइम मैनेजमेंट, बस और कुछ नहीं चाहिए. इसी को कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच. जीवन में, ब्रह्मांड में सब चीज को संपूर्णता के साथ देखो. सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो. यू एक्सेल योरसेल्फ. आप किसी की तारीफ करके देखो, आपके अंदर डोपामाइन, आपके अंदर जो सेरोटोनिन, जो संवेग चलेगा ना, रश, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. You will never have any kind of a frustration, depression, anxiety, restlessness, कुछ नहीं होगा. अगर बच्चों में अगर हम ये बात सिखा दें, वेल्थ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, हैप्पीनेस इज रिक्वायर्ड. वेयर इज एग्जैक्टली. हैप्पीनेस? इट इज नॉट फाउंड इन द मार्केट्स, इन द बॉटल्स, इट इज हेयर इन द हार्ट. ब्रेन से ज्यादा हमारा पावरफुल हार्ट है. अगर हमने बच्चों को ये बता दिया, बेटा अपने हार्ट को खुश रखना, गट फीलिंग यहाँ से शुरू होती है आपके एनएस पॉइंट तक, अच्छा खाना खाना जो मिले, सेल्फ कॉम्प्लेसेंट, ग्रैटिट्यूड. हमारे मोटिवेशनल गुरुज क्या बात करते हैं आप देखिए, चाहे वो दीपक चोपड़ा हो या रॉबिन शर्मा हो, बस ग्रैटिट्यूड. इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इज ओनली अबाउट गोइंग टू द जिम, एक्सरसाइज एंड मेकिंग डोला. इज व्हाट इज डोला शोला? नथिंग. अगर बच्चों में हमने हॉलिस्टिक अप्रोच में, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इज ऑल लाइफ स्किल्स, जो हमारी यूनेस्को ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, हर बच्चे को बताओ. सेल्फ बिल्कुल. अवेयरनेस, गोल सेटिंग. गोल सेटिंग हमारे ट्रेडिशनल करियर्स नहीं होते, बहुत कुछ है उनके अलावा. छोटा सा सही सॉफ्टवेयर आप बात. बना देते हो खेल खेल में, आप बिल गेट्स को मात दे दोगे. जिस दिन बच्चे को बता दिया आपका पोटेंशियल किसी से बड़ा नहीं हो सकता, बस. तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच में ये लाइफ स्किल्स जो हमने बता दी ना बच्चों को, यही बहुत है. कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. इफ यू नो कम्युनिकेशन, you can earn 50 to 60,000. You can sing, you can dance, you can make report, content writing, क्या नहीं है. गेम्स खेलो, उसमें भी पैसा है. तो ये चीजें बतानी है. सही बात. अकेडमिक्स के पीछे नहीं भगाना बच्चों को, जो मेरा ओपिनियन है. और बच्चों को तो बहुत प्यार सजगता के साथ सफलता के मापदंड सिखाएं. और सफलता का मापदंड इज नॉट योर रिपोर्ट कार्ड. आइंस्टाइन कैसा था? मेंटली विक्षिप्त, मानसिक रूप से कमजोर, जिसे क्लासरूम से टीचर ने भगाया, और वो लेटर उसने बहुत बड़े होके पढ़ा, जो उसकी माँ ने उसको कभी नहीं दिखाया. तो ऐसे मेंटली कमजोर बच्चे भी दुनिया में क्या कमाल कर दें, कुछ नहीं कह सकते. तो जो एजुकेशन का जो की है, वो चाबी क्या है? बेटा ये रास्ता है. हम हर रास्ते को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर बार बारिश हो रही है, आप क्या करोगे? अम्ब्रेला से अपने आप को वेल इक्विप्ड करो. बेटा पथरीला रास्ता है तो यू वेयर हैव टू वेयर शूज. आपको हर परिस्थिति में अपने चैलेंजेस को लेना है, स्वीकार करना है, और उनको पार करके सफलता की ओर बढ़ना है. तो सफलता कोई एक स्थान थोड़ी है कि यही है सफलता. आपकी सफलता, योर सक्सेस इज डिफरेंट, माइन इज डिफरेंट, हर्स इज डिफरेंट, योर्स इज डिफरेंट. सो वी हैव ऑल डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस. आप खुश हैं तो ये भी एक सक्सेस है. खुश कितने लोग होते हैं आज बताओ?
आज तो सही बात खुश है। होना ही लोगों का बहुत वो है. So that is my point of view. Holistic approach, including all राइट। the skills. That is the need of the hour in nowadays. बिल्कुल। अवेयरनेस इज द की, लाइक बिना अवेयरनेस के तो कुछ भी नहीं होता है। और बच्चों को लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग से, एंड बिकॉज हम लोग कहते हैं बच्चे जब 3 साल के होते हैं तब से स्कूल शुरू कर देते हैं। अगर हमने वहीं से उन्हें इक्विप करना शुरू कर दिया, उनको सारे स्किल्स सिखा दिए, उनको अवेयरनेस अपने और बाकी वर्ल्ड के बारे में अवेयर कर दिया, तो हम तो पहले ही उन्हें सक्सेस के लिए सेटअप कर रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सही बात है. अवेयरनेस असल में हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के भी जो माइंड सेट था ना, उन्होंने भी नहीं डाली. ये तो इतने लंबे लाइफ टाइम के जो एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया कि फर्स्ट थिंग इज टू नो जी। अबाउट योरसेल्फ, हु यू आर, व्हाट इज योर गोल सेटिंग. फिर हमारा इंटरवेंशन शुरू होता है उस गोल सेटिंग के लिए. बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? टू कलेक्ट द मनी, टू हैव द वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ. मनी इज द ओनली क्राइटेरिया. तो बच्चों के दिमाग में क्या है? जेलेसी, हेट्रेड, नेगेटिव फीलिंग. अरे उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, मुझे कम मिल गया. जब हम इसको तोड़ेंगे कि बेटा क्वालिटी टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वी शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. कम खाओ, इतना ज्यादा वर्कलिक बनोगे ना, 18 घंटे काम करोगे, व्हेन विल यू स्लीप, व्हेन विल यू गेट अप, व्हेन यू विल गिव एंड स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम टू योर फैमिली. तो सारा तो वर्किंग आवर्स में चला गया. आपने पैसे तो कमाए, पैसे कमा के डॉक्टर के इलाज के लिए गए. तो तो प्रोवर्ब्स बने हुए ना, ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. खेलने में क्या होता है? आपका वही। रश, अंदर के सारे पॉजिटिव हार्मोन्स भागने लगते हैं, सिक्रीट करते हैं. और जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं, आप अल्फा स्टेट में आ जाते हो. आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, सेल्फ मोरल इज बूस्टेड. बात करते हैं ना, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम लो है, एनर्जी लो है. आप खुल के एक बार बाहर आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ, और 2 कदम चल के देखो, अब यू फील लाइक एनीथिंग. घर के 4 कॉर्नर से बाहर निकाल के जैसे ही आप कनेक्ट होगे नेचर से, वो आपका शुरू हो जाता है. तो ये खुशी जो बिल्कुल। मिलती है ना, माँ ने दी है, मदर अर्थ ने दी है, उससे कनेक्ट होना है. और लोगों को बस यही रहता है कि क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव हेल्थ. पॉजिटिव हेल्थ से बड़ी कोई हेल्थ ही नहीं है. बिल्कुल। खा रहे मोटे मोटे पिज्जा, उसके बाद कहते हैं कि मतलब ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है. डाइट में भी आप ये देखो, कितना ऑयली, कितना क्रीमी, जो बैलेंस फूड नहीं है. तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. एक तो गैजेट्स ने खराब कर दिया बच्चों को. सारा समय स्क्रीन पे रहो, लैपटॉप्स पे रहो. सोने के टाइम पर वो काम करते हैं और सारी रात काम करेंगे और सारा दिन सोएंगे. सारा उनका उल्टा चक्र हो गया है. फिर जब आप सुबह उठते हो तो ऐसे होते हो, लो एनर्जी, आंखें स्वॉलन, क्योंकि आपने तो सनराइज के साथ उठे ही नहीं. और हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया है? सुबह उठते समय जैसे जैसे सूर्य की ज्वाला, उसकी वार्मथ उठती है, आप खाना भी उसी रेशियो में खाइए. शाम के 7 बजे सूर्य जो, जब हमारा सूर्य यानी सन जब सेट हो रहा है, उसके बाद खाना भी मत खाओ, कि पेट की अग्नि जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म वहीं पे खत्म होने लगता है. जब हम ऐसी चीजें हमारे परिवारों में अब रही कहाँ गई हैं. सही बात है, सही बात है। और इसी वजह से लाइक मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है ये जो अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में हो कि लाइफ स्टाइल के बारे में हो, ये अवेयरनेस सिर्फ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स और टीचर्स को भी इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस हो और उनकी इस चीजों के बारे में क्लास ली जाए? इट इज Leisure. It is more important for the elders, for the parents, for the teachers, for the grown-up youth. अगर वो अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली दिस लेगेसी विल बी कैरिड ऑन टू द यंग वंस. क्योंकि बच्चों की अवेयरनेस कैसे आएगी? ये अवेयरनेस हम लोग ने इतने सालों के बाद अपने अपने सेल्फ से करी. जब हम लोगों ने मोटिवेशनल चीजों को पढ़ा, दीपक चोपड़ा को पढ़ा, रॉबिन शर्मा को पढ़ा, और जितनी भी चीजें हैं, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज किया. तो वैसे ही टीचर्स के लिए है, वैसे ही काउंसलर्स के लिए है, माता पिता के लिए है, बुजुर्गों के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. तभी जनरेशन गैप भी कम होगा और लोग इस इशू को कि मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए बातचीत करना. आप 1 घंटा जिम करो और 5 मिनट अपनी दोस्त से बात करके आओ, इक्वल है वो.
क्योंकि जब आपने 10 मिनट्स की 50 मिनट्स की जो बात की ना, जो आपने खुल के जो ठाके लगा लिए ना, वो आपकी खुशी जो उतनी रॉबस्ट होके आ गई। जरूरत नहीं है फिर आपको जिम के लिए, क्योंकि आपका कन्वर्सेशन, आपके इमोशन चोक्ड नहीं हुए। यू हैव वेंट आउट योर इमोशंस। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी इमोशंस वेंट आउट हो रहे हैं, हमारा एंगर, हमारा लव, हमारी एम्पैथी, हमारी संवेदनाएं, रोना भी है, हंसना भी है, खिलखिलाना भी है, और दूसरों के साथ एम्पैथाइज भी करना है, तारीफ भी करनी है, और उसके साथ विश्वास अपने पे रखना है, दूसरों को भी ट्रस्ट करना है। जब ये चीजें हमारी बराबर से चलती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत हेल्दी होते हैं। तब हमें अपना जो है बहुत कसरत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमने अपना मेंटल जो बीइंग है, इमोशनली वेल बीइंग पे हमने काम किया, और यही समय की मांग है। आजकल बच्चों में आप देखो ना, कितना एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स। बीमारी भी दो तरह की है। एक तो स्पेसिफिकली बीमारी है भाई, एडीएचडी हो गया आपको, आप अटेंशन जी। सीकर हैं। दूसरे बच्चे हैं ऑटिज्म के हैं, वहां पे पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं है बच्चों के प्रति। जी। मैं आपको दो बताऊं, दो इंसिडेंट्स। जी। बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय न सेक्टर 4 में मैं आपको एक ऐसे पेरेंट के बारे में बता रही हूँ, हाईली क्वालिफाइड। उनका एक लड़का आया, हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया, नाम नहीं बताती। अब वो लड़का था ऑटिज्म का शिकार, उसके दो जी। तीन थे डिसऑर्डर्स। जैसे ही वो आया, वो काफी हेफ्टी होने की वजह से उसने दूसरे तीसरे दिन से बच्चों पे अटैक शुरू करे, बुली करना शुरू किया। फिर जब बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, तो फिर ये ऐसा किया गया कि चलो ऐसा करते हैं, इसके घर से किसी मेंबर को लगा देते हैं इसके साथ में। तो his mother started accompanying him every day in the school, and she used to sit with her child in the classroom. अगली क्लास में आया, 9th तक में, 8th में आ गया। एक दिन नई फ्रेशर टीचर आई, and the moment she entered into the classroom, this child has made an attack on her, और यहाँ पे बाइट कर लिया। ये कर लिया। उसके पेरेंट्स को कई बार बताया गया कि आपका बच्चा स्पेशल स्कूल के लिए ही होगा, ये नॉर्मल स्कूल में नहीं चलेगा। जी। लेकिन उनके पेरेंट्स ने कहा नहीं, माय चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट। उसकी मदर रोज काम करती, सारा होमवर्क करती, नोटबुक्स बनाती, और कहती है सब इसने किया है, सब इसने किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस ना हो बच्चे की बीमारी के बारे में। और फिर क्या हुआ, जब अटैक हुआ, फिर उसकी सारी रिपोर्ट लिखवाई, मेडिकल हुआ, तब जाके उसको टीसी दे के बाहर किया। दूसरा इंसिडेंट, दूसरे पेरेंट्स के बच्चे के भी है कुछ प्रॉब्लम है, उसको न्यूरो प्रॉब्लम है, वो बात नहीं कर सकता, उसको हियरिंग इम्पेयर्ड भी है थोड़ा, दिखने में ठीक ठाक है। उसके पेरेंट्स लाजवाब पेरेंट्स हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हें मालूम है। और इसी सपोर्ट की वजह से वो बार बार पूछते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे दें डांस के लिए। डांस सिखाया उन्होंने घर में, और हर दिन उसकी माँ छोड़ने आती थी, लेने आती थी, पढ़ लिख कुछता नहीं था, ऐसे ही बैठा रहता था। असेंबली में डांस कराया, असेंबली में डांस कराया, उस बच्चे का तो क्या हुआ, सेल्फ स्टीम हाई, खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है, खुश हो रहा है कि आज मैंने डांस किया, सबने क्लैपिंग की। दिस इज द वे टू मोटिवेट अवर स्टूडेंट्स। राइट। नाम है राइट। शाश्वत, और आई सैल्यूट टू द मदर ऑफ शाश्वत। उस शाश्वत की मदर ने इतना बढ़िया काम किया, बच्चे को तो 12th पास करवाई वहां से, साथ ही साथ उसने अपना टाइम भी वॉलंटियर किया स्कूल के लिए, क्योंकि शी वॉज अ वेरी गुड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। वो फ्लावर मेकिंग करती थी, तो फ्लावर मेकिंग के उसने बुके बनाना सिखाए बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को, और अपने डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ बैठ के उनको भी पढ़ाती थी, जिसमें उसका अपना बेटा भी ज्वाइन करता। तो ये देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक मदर है जिसकी एक्सेप्टेंस है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं इसकी वजह से दूसरे बच्चों को फायदा हो रहा है। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था। अपनी दूसरी बेटी को उसने बिल्कुल। उसका स्क्राइब बनाया कि तू बोर्ड के एग्जाम में उसका स्क्राइब बन के लिख। उसकी बेटी पूरा उसका 12th का पढ़ती थी। तो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पेरेंट्स परसेप्शन ऑल्सो। एक पेरेंट की एक्सेप्टेंस नहीं है, और एक पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस है कि इसको अगर एडीएचडी है तो इसको अटेंशन के लिए एक शेडो चाहिए,
और दूसरे को नहीं नहीं हम तो देख लेंगे, मदर कहाँ हैंडल कर पाई, उस बच्चे की मदर हैंडल नहीं कर पाई और उस बच्चे ने मैडम के ऊपर अटैक कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो नैब का एसोसिएशन होना स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत अच्छा है। मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई हैव कंट्रीब्यूटेड अ 0.1 टू ऑल दीज चिल्ड्रन। और जिस लड़की ने टॉप किया, ममता, उसके इंग्लिश के नोट्स मैंने ऑडियो में तैयार किए। 2016 की बात है ये। उसी स्कूल में एक और टीचर है, उसका बेटा था हिमांश, उसने भी अपने बच्चे की जिस तरह से परवरिश करी, स्पेशल नीड चाइल्ड, और आज वो जब बड़ा हो गया, जब यहाँ से ट्रांसफर होके मैडम, तो नोएडा के स्पेशल स्कूल में डाला। तो जैसे बात होती है इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में डाला जाए या नॉर्मल स्कूल में, तो डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, द इशू विच द चाइल्ड इज फेसिंग। अगर बच्चा जी ठीक ठाक है, वीआई है, नो इशू, उसको पीयर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा ऐसा है कि कुछ नहीं है, उस टीचर हमारे स्कूल में माना साइन लैंग्वेज नहीं है, बच्चे के पास आंखें हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर साइन लैंग्वेज वाला टीचर चाहिए। ऐसी बिल्कुल। स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में उस बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालो। तो जी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड वी हैव टू केटर द नीड्स, और कौन सा टीचर किस बच्चे के साथ अटैच होकर उसको सिखाएगा, ये डिपेंड बिल्कुल। करता है। तो वैसे तो जनरली हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, हमारी एनईपी भी यही कहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेट द चिल्ड्रन बी वॉट गेट इनटू द मेन स्ट्रीम। लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर टीचर वहां पे नहीं है साइन लैंग्वेज का, तो बच्चे का होना बेकार है। अगर दूसरे सही कुछ इश्यूज हैं, वीआई बात है, अगर ब्रेल की बुक्स हैं, तब तो ठीक है है। मेन स्ट्रीम में। अदरवाइज द चाइल्ड इज सपोज टू बी वेयर टू गेट इनटू द सम अदर स्कूल। स्पेशल स्कूल्स भी हैं जहाँ पे दूसरे स्कूल्स वाले बच्चे में, उनको देख के बच्चा सीखता है। एक पेरेंट ने हमें बोला था कि स्पेशल एजुकेशन में उनके बच्चे स्पेशल एजुकेशन स्कूल में थे, तब दे वर नॉट एबल टू फ्लरिश एज मच, जब उन्होंने नॉर्मल स्कूल ज्वाइन किया तो दे सॉ सच गुड चेंजेस इन देयर किड्स, राइट। वेरी एंड गुड, मेरे को यही आपसे पूछना भी था कि आपको क्या लगता है, स्कूल में जाना चाहिए? बस ये आप दोनों अपने जो आंसर में अपने आप ही जवाब दे रही हैं, आपका आंसर इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना होलिस्टिक हो रहा है। एक और मैं आपको राइट। किस्सा बताती हूँ। अभी फरीदाबाद के नैब में मेरी विजिट थी, 23 या 24 जून के दिन। वहां पे 8-9 जी लड़कियों ने कुकिंग का स्किल का टेस्ट दिया था। दे वर सपोज टू पास फ्रॉम नैब फरीदाबाद, ये आपका भविष्य मेडिकल स्टोर के आगे है नैब। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था खाना टेस्ट करने के लिए, कि हाउ विल यू एसेस ऑल दीज चिल्ड्रन। तो मैं वहाँ टाइम से पहुंच गई, तो देवा मेकिंग पूरी, चपाती, पनीर, दाल, सैलेड सब तैयार था। तो फिर मैंने पूछा दाल किसने बनाई, तुमने कैसे बनाई, कैसे मसाले डाले, तो छोटा सा वीडियो भी बनाया उनका। मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि वहां की ज्योति मैम ने बताया कि द 6 month कोर्स enable them to learn about the cooking, कुकनरी जो स्किल्स है आपकी, कलनरी स्किल्स, कुकिंग स्किल्स जो उन्होंने बच्चों ने सीखी, और उसके बाद जो खाना उन्होंने परोस के रखा, कमाल का था। मतलब आप देख रहे हो, बच्चा देख नहीं सकता, सारे भी आए थे ऑलमोस्ट, लेकिन इतना एक्सपीरियंस था, ये कढ़ाई है, ये पूरी तल रहे हैं, ये इसकी जो आग की वार्मथ है, इंस्ट्रक्शन तो टीचर्स दे रहे थे, लेकिन जी पर्सनल हाइजीन से लेकर कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, वो सब चीजें वहां पे सीख रहे। एक्सपीरियंस ये रहा कि बच्चे कैसे काम करना सीखते हैं, आप देखो। तो जब वो कम्युनिटी में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड दे एक्सप्लोर आल्सो, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ गोइंग अहेड with the peer support, with the instructions, and having a faith in themselves and trusting others also. ये टाइप के पेरेंट्स होते हैं जिनको अवेयरनेस और पता होता है कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है इन जनरल सोसाइटी में टीचर्स को और पेरेंट्स को अबाउट द डिसेबिलिटीज, अबाउट द डिसऑर्डर्स, अबाउट द इश्यूज चिल्ड्रन कुड हैव और दैट माइट प्रेजेंट इटसेल्फ इन चाइल्डहुड, इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है अभी लोगों? जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत इनिशिएटिव रहा है, जैसे हम लोग ने अभी प्रशांत ऐप पे बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े, जी जिसमें जैसे न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी है,
ग्राफ्स की डिसेबिलिटी है, जैसे मूवी आई थी आमिर खान की डिसलेक्सिया वगैरह, तो उसमें हर एक डिजीज के बारे में इतना डिटेल बताया गया और कैसे उनसे कोप करना है। ये सारी स्ट्रैटेजी, सारे मैकेनिज्म टीचर्स को बताए जाते हैं। तो वो जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो हम सब टीचर्स पढ़ते हैं, एंड वी हैव टू अपियर फॉर द एग्जाम आल्सो। Unless and until you get 75% marks in the same module, you cannot move ahead to the next module. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है निष्ठा करके। तो निष्ठा में जो उन्होंने एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलके बनाए हैं, कीपिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो हर टीचर अवेयर है। मतलब हम बच्चे का बिहेवियर देख के इसको डिस्ट्रैक्शन है, अच्छा इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो when you counsel a child, you'll get to know about yesterday he had a abusive violence, ये डोमेस्टिक वायलेंस घर में हुआ है। फिर आप जब देखते हो उसकी बॉडी पे कुछ निशान पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं कि इस बच्चे के साथ क्या इश्यूज, आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, अच्छा आज पापा ने पिटाई लगाई होगी, दारू पिया होगा। मतलब ये सारे इंसिडेंट्स जो हम लोग पता, अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर स्टिल गांव के इलाकों में नहीं है। अर्बन इलाकों में तो है क्योंकि आपके पास गैजेट्स हैं, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म पे अभी भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। दूसरी बड़ी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। ऐसे बच्चों को हम प्रथम दृष्टया, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंस्टेंस में, हम बहुत ज्यादा उनको ऐसे निग्लेक्ट करते हैं, खराब है, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है। आप ये देखो ना, रविंद्र जैन जो वीआई हैं हमारे बॉलीवुड में, कितने अच्छे भजन गाते हैं। अगर जरा सा हम इनको जेस्ट दे दें, अपॉर्चुनिटी दे दें, ओपन कम्युनिकेशन दे दें, तो ये बच्चे कमाल कर देते हैं। ये गाना अच्छा गा सकते हैं, डांस अच्छा कर लेते हैं। और तमिल संगम दिल्ली में है, वहां पे डिसेबल्ड बच्चों का एक डांस प्रोग्राम होता है, सारे हैंडीकैप बच्चे। पर वो हैंडीकैप मन से नहीं होते, वो चेयर पे बैठ के भी डांस कर देते हैं। किसी का हैंड नहीं है, किसी का कोई लिम्ब नहीं है, पर दे डोंट फील एनीथिंग इंफीरियर अबाउट देमसेल्व्स। तो जहां तक अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस तो हर दिन बढ़ानी होगी। सिर्फ पढ़ने से अवेयरनेस नहीं आती, क्योंकि पढ़ तो बहुत लेते हैं लोग, नॉलेज तो सबके पास है, ये ऐसा है वो वैसा है। तो पढ़ाई से ज्यादा जरूरत क्या है, विजडम की। हाउ टू अप्लाई दैट विजडम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। भाषण देना इज वेरी इजी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दूसरों की बुक्स पढ़ते हैं या देखते हैं, जैसे आपने कहा रूजावेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जब वो हैंडीकैप हो गए, चेयर में बैठ के भी लीडरशिप उनकी बरकरार थी। तो जो भी डिसेबिलिटी है वो यहीं पे माइंड पे है, और कहीं नहीं है। ना आपके लिम्स में है, ना कहीं आपको ये है, बस वो तो आपका स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर है, आप डिसेबिलिटी से ऊपर हो जाते हैं। हाँ देखो, कुछ ऐसे डिजीज हैं, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, जो इस तरह वाले फॉरगेटिंग वाले, ये जो डिजीजेस है इनके तो आपको मेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल। भाई डिजीज के साथ आपको उनका जो है लाइफस्टाइल, उनका खाने का, कि कौन से चीज से इसको ये एलर्जी बढ़ सकती है या इसका ये डिजीज बढ़ सकता है, तो वो तो फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए। लेकिन वैसे जनरल में जो इनकी डिसेबिलिटी, जैसे आपका वीआई हो गया, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गया, वॉइस की प्रॉब्लम होगी, ये बच्चे बहुत खुश रहते हैं, ये बच्चे बढ़िया तरीके से जीवन में दौड़ते भागते कर लेते हैं, एंड दे गेट द जॉब ऑल्सो। बिल्कुल। केवी सेक्टर 4 का ही देवेश नाम का एक बच्चा है, आज बहुत अच्छे से बैंक में प्लेस्ड है, बहुत बढ़िया वीआई था, इतना बढ़िया गाना गाता था कि हम उसको हमेशा पोयम रेसिटेशन कंपटीशन में उसने केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल लेवल, नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बच्चे किसी से कम है, ये बच्चे भी बड़े हुनरमंद होते हैं, और हुनर इनके सिक्स सेंस में होता है। कहते हैं ना, भगवान कभी भी किसी को बिना अच्छे से सोचे समझे नहीं बनाकर भेजता है। तो अगर भगवान हाँ कहीं वो पे तो, कुछ कमी करता है तो वो कहीं और पूरी कर ही देते हैं। हाँ, ही हैड अ प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। कोई कमी है तो उस कमी को वो दूसरे में, उसका हीरा नहीं है तो वो कोहिनूर बना देगा किसी न किसी एस्पेक्ट में। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ ना, तो मैंने देखा है इन बच्चों को
ये बच्चे किस तरह से टॉपर बन रहे हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, और कभी शिकायत नहीं है इनको अपनी लाइफ से। हम जैसे नॉर्मल लोग तो कितना ईर्ष्या करते हैं, कितना नेगेटिव बोलते हैं, कितनी हम लोगों की जेलसी होती है, कितनी नेगेटिव हमारी इमोशंस हो जाती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेड नहीं आई, एक दिन काम करना पड़ा। कितनी सारी हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो निम्न स्तरीय हैं, जो हमारे तनाव को बढ़ाती हैं। तो उच्च तनाव, और जैसे कहते हैं ना हाइपरटेंशन, कितनी जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस बस्टर्स बनना है, स्ट्रेस रिलीव करना है, दूसरों को समझाना है, खुद को समझना है, एक बेहतर सोसाइटी की शुरुआत करनी है। बस यही सब बातें होती हैं। एक टीचर तो यही चाहता है कि एम्पैथाइज करो, खुशी से जीवन खुल के जियो। क्या आपको एकदम। लगता है कि इस अवेयरनेस और इस लाइक जानने की वजह से भी कोई प्रो कॉन्स आ सकते हैं? प्रोज तो आपने इतने सारे गिन लिए, क्या जानकारी कभी भी हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है? नहीं, जानकारी का सही उपयोग, उसका सही वो है। जी। जैसे हम कहते हैं साइंस इज अ बून और अ बेन, क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज देयर। एडोलसेंस दे इस माइंडसेट में होते हैं कि क्यूरियस माइंड्स, डिस्कवर करो, एक्सप्लोर करो। तो जरूरत से ज्यादा जानकारी, अब देखो बच्चों के जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, एक काइनेस्टिक बच्चा जो है, जो बॉडीली टच से सीख सकता है, तो वो तो वैसे ही सीखेगा। भाई क्रेविंग तो उनके अंदर भी है, इमोशंस तो उनके अंदर भी हैं। लेकिन जो एक विजुअल बच्चा है वो तो देख के ही सीखेगा, एक ऑडिटरी बच्चा तो वो वैसे ही सुन के देखेगा। तो हर बच्चे की स्किल अलग अलग है सीखने के लिए। और जानकारी होना अच्छी बात है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज है, तभी तो आप अपने फोन पे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, डालोगे, तभी तो आप सुन के उसको ट्रांसलेट करके समझोगे। कि हमारे यहाँ जो बच्चे उनके लैपटॉप में जाइस कौन सा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डाल के देते हैं, तो दैट इंटरप्रेट वट एवर दे हैव टू हियर। तो इस तरह के जितने भी हैं वो टेक्नोलॉजी से तो आ रहा है उनको। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज करिए और बनिए, बादशाह बनिए। ये तो बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को तो आना चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स इसलिए भी हम कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग, एनालाइजिंग, क्वेश्चनिंग, इवैल्यूएटिंग, असेसिंग, अगर ये चार पांच चीजें आपको नहीं आती तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपने स्टार्टअप खोलना है तो उसका डेमोग्राफी देखोगे, वहां के ऑडियंस देखोगे, पता करोगे कि यहाँ पे हम स्टार्टअप लगा रहे हैं तो कौन सा चलेगा। जिसकी भरमार है वही थोड़ी लगा लेंगे, वहां डिमांड क्या है। तो बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, असेसमेंट बहुत जरूरी है, और क्वेश्चनिंग हर चीज के लिए जरूरी है। उसका प्रॉस देखो, उसका कॉन देखो, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ऐसा भी अगर हम जेस्ट प्रोवाइड कर दें किसी को तो उसका जीवन ही बन जाएगा। थोड़ी सी खुशी बांट के देखो, वो खुशी आपकी अबंडेंस में लौट के आती है। जस्ट प्रेज अ स्वीट वर्ड्स टू एनीवन, दैट काइंडनेस विल फ्लो बैक टू यू। जैसा हम बोते हैं वैसा हमको मिलता है। ऐसे कौन से स्किल्स है या फिर ऐसे कौन से टेक्निक्स है जो आप बोल सकते हो कि बच्चों को अपने उनकी लाइफ में जो इतने सारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन्हें मैनेज करने को सिखाते हैं? हम प्रेशर कुकर लगाते हैं ना, तो जब स्टीम भर जाती है तो रिलीज होती है। वैसे हमारी बॉडी भी एक प्रेशर कुकर है। अब हम अपनी बॉडी का स्ट्रेस कैसे रिलीव करते हैं, इसके हर कल्चर में हर इंसान के अलग अलग है। जैसे इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप थोड़ा सा ये ज्ञान मुद्रा बना लो, थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाओ, आप अपनी डीप ब्रीदिंग, सिर्फ जब आप ब्रीद कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी सांस को एक बार दो बार ऊपर नीचे करके ही देखें। उस समय किसी भी थॉट को नहीं आने दें। एक टेक्निक ये है कि प्राणायाम, नाड़ी शोधन, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आपके जो प्राण वायु है ना, आपके टोस से प्राण वायु ऊपर को आने लगती है। तो जैसे जैसे प्राण वायु हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। तो जैसे जैसे ये ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा टेंशन जो है रिलीज होता है। तभी कहते हैं ना, मॉर्निंग में मेडिटेशन एनी टाइम यू कैन डू इट। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज, हल्की जॉगिंग,
आप प्राणायाम नहीं कर सकते, एक जगह पे खड़े होके 10 से 20 बार कदम उछाल दीजिए। अगर आपको लगता है स्ट्रेस आ रहा है तो आपने ये हाथ लिया, फिट्स को ऐसे मोड़ा, यूं ऐसे किया, ये भी स्ट्रेस रिलीज कर देता है आपको। यूं टाइट 5 फिंगर्स क्रॉस एंड देन डू लाइक दिस, दोनों फिट्स के साथ, स्ट्रेस रिलीज कर देगा। सिंपल टेक्निक, आपने हाथ यूं लिया, यूं करा, छोड़ दिया, स्ट्रेस रिलीज। सिंपल टेक्निक्स। यस। फिर आपको लगता है कि हाँ, ये आपके वाइटल पॉइंट्स हैं नोज के पास, इसको प्रेस करिए, 1 2 3 4 5, ये आपका आज्ञा चक्र, यहाँ आपके आईब्रोज के पास, ये दिस, ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं। अगर हमें अपने एनर्जी पॉइंट्स पता है, फिर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ये है आपके पाम्स, नमस्ते किया, एनर्जी पॉइंट्स। सिंपल टेक्निक बच्चों को बताओ, बच्चों आपको स्ट्रेस हो रहा है, नाउ वी विल डू लाइक दिस। मैम कैसे करना है? क्लोज इट, हाउ डू यू फील नाउ, ओपन योर आर्म्स अप, दैट्स इट। 2 बार कराओ, 3 बार, आप बच्चे का मूड ही चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ मूड इनहांसर। फिर उसके बाद प्रार्थना, जैसे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो आपने कह दिया ओम का रेसिटेशन, आपका ओम का रेसिटेशन, ओ, उसकी वाइब्रेशन ऊपर तक आनी चाहिए, माँ तक। छोटी छोटी रेमेडीज हैं आपकी। आपको लगता है स्ट्रेस हो रहा है, पुट ऑन द म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। आप देखो आपका स्ट्रेस कहाँ चला गया। आप कोई भी ओल्ड सॉन्ग्स लगा लो, म्यूजिक लगा लो, कुछ नहीं है तो मेडिटेशन का छोटा सा 2-3 सेकंड का लगा लो, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं आपको, एंड यू आर रेडी टू कनेक्ट विद व्हाट, दैट डिवाइन पावर। वो ब्रह्मांड की शक्ति से आप कनेक्ट होते हो, क्योंकि आप उसी का हिस्सा हो। ये सिंपल टेक्निक्स होती है, कोपिंग मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं। आप अपना जो आपको जिससे स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट टॉक टू समबडी, फ्रेंड को फोन लगाओ, मम्मी से बात करो, अंकल से बात करो, टॉक एंड वेंट आउट। एंड द मोमेंट यू वेंट आउट, योर इमोशंस आर चोक, नहीं रहेंगे आपके। यहाँ गले में दर्द हो रहा है, फंस रहा है, बैक ऑफ द माइंड, any traumatic experience which had made you in a miserable position, उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बाहर करो, बाहर। जैसे ही आपने दर्द भरी घटना को बाहर निकाला, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, एंड बी असर्टिव। जैसे ही आप असर्टिव होते हैं, यस दिस इज राइट, आई एम रेडी, दिस इज नो, नोबडी कैन टच माई बॉडी, आई एम यूनिक इन माई वे, आपने परमिशन नहीं दी। ये मेथड्स बच्चों को हमने अप्लाई करने होते हैं। जब हम इन चीजों के बारे में बार बार बात करते हैं, तो बच्चे के अंदर असर्टिवनेस, एक अफर्मेशन आता है, और ये अफर्मेशन आपको बहुत ज्यादा काम, कूल, वेल बैलेंस्ड, बहुत कंपोजर, आपका बहुत सिंपल हो जाता है। जब तक आपका वो स्ट्रेस का जो इशू है ना, आप बात नहीं करोगे, वो निकलेगा नहीं, वो आप परेशान रहोगे। उसके बाद आप इन टेक्निक्स को अपनाओगे, और फिर भी आप लग रहा है कि यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट, आप बात करने में असमर्थ हैं, तो इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। एनर्जी पॉइंट्स, क्लोज, क्लोज, क्लोज योर आईज, दैट्स इट। तो काम और कूल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा आपाधापी है, भागा दौड़ी है, लाइफ में रेस्ट नहीं है। Everybody wants to be happy, but nobody is happy. एक जनरल स्टेटमेंट है, रेयर पीपल दे फील दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, सेल्फ कॉम्प्लेसेंट। व्हाई? You have a money, you have a job, you have everything, why are you not happy? हैप्पीनेस को खोजने के लिए ही ये सारी चीजें बनाई गई हैं, मैकेनिज्म, कि कोप करिए, कोप योर स्ट्रेस, कोप अप, स्ट्रेस को कॉम्बैट करो, कॉम्बैट करो। जैसे ही आप दूर भगाओगे तनाव को, तो आप क्या होगा, नॉर्मल फील करोगे। नहीं तो फिर वो रेस्टलेसनेस चलती रहेगी आपकी लाइफ में, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, वो ट्रिगर करेगा आपको,
और जब चीजें ट्रिगर करती हैं तब आप नॉर्मल बिहेव नहीं करोगे, तब आप हाथ खुजलाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, सिर पकड़े रहोगे, यही सारी चीजें सिम्टम्स आ जाते हैं आपके। हेड डाउन कर लोगे, विड्रॉन कर लोगे सोसाइटी से, then you are not ready to communicate with anyone. You just want to isolate yourself. ये सारे इश्यूज होते हैं स्कूल लाइफ में, तो रोज ही इन चीजों से पाला पड़ता है और देखते हैं। और इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस अपने भी बढ़ाते रहो विद द चेंज ऑफ टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम। अपग्रेड करो अपने आप को, नए बिलीव्स पैदा करो और अंधविश्वास सुपरस्टिशन को दूर भगाओ। साइंटिफिकली हर चीज का एक रीजन है, साइंटिफिकली चीज को एनालाइज करिए और तब आगे बढ़िए। कभी कभी जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो इसलिए हम खुद ही अपने लिए ऑल वांट टू बिकम सुपर शुरू कर वुमेन, देते हैं। कि हम जो है सबसे ज्यादा सुपर हैं, हम कुकिंग भी करेंगे, हम मार्केटिंग भी करेंगे, हम जॉब भी करेंगे, हम डिशेस भी बनाएंगे। सुपर वुमन का खिताब, हर आदमी सोचता है कि हम बहुत काम करते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। हायर करो, हायर करो, अपनी बॉडी को रेस्ट करने दो, कम काम करो। जितना काम आपके उसमें हो उतना ही करना चाहिए। मल्टीटास्किंग से भी बहुत स्ट्रेस होता है, हर चीज में घुस जाते हैं ना। बिल्कुल। जॉब है 6 बजे तक, तो उसको खत्म करके आओ। स्कूल का जॉब तो घर में लाना पड़ेगा, कॉपी का करेक्शन तो घर में ही करना है वहां तो होगा नहीं। तो हर एक जॉब की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, किसी के लॉन्ग आवर्स हैं, किसी को काम घर में लाना है, तो सबका इशू कुछ ना कुछ तो चलता ही आई है। एम प्रिटी श्योर कि जो भी ये देख रहा है उसको भी इतना ही ज्यादा आपसे सीखने को मिल रहा है। Share the information. That is the whole soul motto of a teacher. That's it. आई वांटेड टू नो वन थिंग, ऐसे कौन से तरीके हैं जो टीचर्स यूज कर सकते हैं बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनके स्पेशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए? हाउ कैन टीचर्स गाइड दीज स्टूडेंट्स? Kendra Vidyalaya, we have a more than 50 to 70 students in a class. So we don't have a spare time to take individual needs of the child. That is a great problem. टीचर्स को आता है, लेकिन टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक बच्चे के पीछे पीछे जाके वो कर पाए, क्योंकि हमें तो बल्क में देखना है। इसीलिए जब बात होती है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ कम होने पर ही हम इन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, यू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो हम ऐसे बच्चों को आगे बिठा लेते हैं कि चलो तुम आगे बैठ जाओ, कर लो, पर हम बहुत ज्यादा उन पर फोकस नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि दैट इज अ ग्रेट लेकोना on a part of the teachers. Looking at the strength of more than a 45 and a 50 students at a strength, we cannot teach individually to them, isn't it? ये थ्रेट है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें उनके साथ इतना करना पड़ता है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में भी कुछ कमियां हो जाती हैं। भगवान तो कोई नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस, और टीचर्स भी बिल्कुल ह्यूमंस एग्जैक्टली, ही हैं। हाँ बस रिसोर्सेस की कमी हो जाती है, कुछ कुछ ये भी समझ लो बात। तो रिसोर्सेस की जहाँ कमी हुई, कहीं पे पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं पे बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, कहीं पे उनको फीस की प्रॉब्लम है, तो जो नाब वाले हैं वो तो फीस वगैरह भर देते हैं बच्चों की, पर कई पेरेंट्स बड़े एडमेंट होते हैं, वो एक बार छोड़ के जाते हैं, आते ही नहीं है, तो वो भी इशू बनता है। हाउ लॉन्ग वन विल पे द फीस ऑफ दीज काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो सरकार को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, कि वो भी उनको कुछ कर सकें, कुछ हम्म। सब्सिडी दे दें या कुछ आगे बढ़ाने के लिए कर दें, या इनको कुछ बिजनेस कराने के लिए कुछ लमसम मनी दे दें, कि ये कुछ रियलिटी शो ही कर लें, या जो भी इनके पास हुनर है उससे वो कुछ कर लें। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जहाँ पे डिफरेंटली एबल बच्चों को कैंडल बनाना, पापड़ बनाना ऐसे सिखाते हैं। दिल्ली में भी वसंत विहार में मुस्कान करके, वहां पे भी मैंने देखा कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है, जहाँ पे बच्चे सीख के फिर अपना काम करने लगते हैं। स्टेप के लिए आपको क्या लगता है पेरेंट्स कैसे टीचर्स और स्कूल्स के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं उनके बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए? जैसे मैं बताऊं, जैसे भी मैंने बताया था, एक शाश्वत की मदर थी, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का उसने किया, तो पेरेंट ने खुद वॉलेंटियर किया। इसी तरह से अगर कोई पेरेंट है घर में, उसके पास कोई टैलेंट है और वो चाहता है कि स्कूल की मदद कर दे, सपोज डॉक्टर, एक दिन आके हाइजीन के बारे में वर्कशॉप ले ले, वेबिनार कर दे, हैंड्स वॉशिंग, व्हाट इज अ पर्सनल हाइजीन,
कैसे करना है, लेडी डॉक्टर है तो लड़कियों के लिए क्लास ले ली। तो इस तरह की चीजों से बड़ा फायदा हो जाता है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक गेस्ट स्पीकर मिल गया। तो कराटे माना किसी घर में बड़ा भाई है या उसके फादर कोच हैं, आके 1-2 घंटा हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे दे। तो अगर ऐसे वाले पेरेंट्स वॉलंटियर करते हैं तो स्कूल का बेनिफिट हो जाता है। कोई पेरेंट किसी चीज में अच्छा है तो वो रिसोर्स अपना दे दे स्कूल को, तो बेनिफिट हो जाता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स का जो कम्युनिकेशन है वही स्कूल को बढ़ाता है। जितना ज्यादा हमारी पीटीएम होगी, विल गेट टू नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट डाइवर्स काइंड्स ऑफ पेरेंट्स। आप किस फील्ड में, आप इस फील्ड में आप हमें क्या कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट करेंगे स्कूल को। अच्छा, तो आपके पास ये है तो आप ये करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर देते हैं। ये तभी होता है कि जब आपका पीटीएम लगातार कंडक्ट हो, जब स्कूल वाले भी उनको फेलिसिटेट करें और वो हमें फेलिसिटेट करें किसी न किसी एरिया में। जैसे हमारे स्कूल के बच्चे एलुमनाइज, जब वो पास आउट होते हैं उसके बाद आके वो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे जाते हैं कि नाउ वी हैव गॉट अ गुड जॉब, न्यू प्लेसमेंट मिली, हम आपके स्कूल में कूलर्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वाटर कूलर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम बच्चों को ये अच्छा हम किट दे रहे हैं आपको स्पोर्ट्स की। खुश होके बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स के संस्कार हैं बच्चों के ऊपर कि आपने जहाँ पे 12 साल पढ़ाई करी, 16-17 साल पढ़ के जा रहे हो, नाउ द टाइम हैज कम टू पे बैक द ग्रेटिट्यूड, एंड दिस इज द ग्रेटिट्यूड। हम तो पास आउट हो गए, हमारा नाम तो ऑनर बोर्ड में है, लेकिन वी हैव डन समथिंग अ लिटिल बिट फॉर यू, फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो। कोरोना काल में हमारे एलुमनाई ने 15-16 मोबाइल फोन्स दिए उन बच्चों को, डिप्राइव्ड बच्चों को। कितनी अच्छी बात है। 15 फोन खरीद के किसी बच्चे ने दिए कि स्कूल के बच्चे पढ़ पाए, कोरोना में क्लासेस ले पाए, तो अच्छा लगा। ऐसे भी सपोर्ट मिल जाते हैं। फिर कोई बहुत अगर उसी एरिया का कोई बहुत बड़ा है, जैसे पैसे वाला कोई है, तो कभी टीचर्स डे पे कोई गिफ्ट बांट दिया स्कूल में। जैसे टीचर्स के लिए Right. अम्ब्रेला ही दे दो, टिफिन बॉक्स दे दो, लंच बॉक्स शेयर कर दो। तो छोटा मोटा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन टीचर्स के साथ है। जहाँ पे स्कूल रेसिडेंशियल है तो वहीं से बच्चे पढ़ के बड़े हुए, तो वहां के लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई भी एक। हमेशा नहीं, कभी कभी ऑफर्स ऐसे आ। इसकी वजह से टीचर्स को अप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है। अगर हम एक ही इंसान से एक्सपेक्ट करें कि उनसे हमें सारे रिसोर्सेज मिल जाए तो इट इज अ ह्यूज थिंग, बट जब पूरी कम्युनिटी मिलके कुछ करने के लिए कोशिश करती है तो इट बिकम सो मच इजियर। खुशी देते हो तभी वापस भी मिलती है आपको। आप राइट। खुशी दोगे तो खुशी तो वापस आएगी। बिल्कुल। सीधी सी बात है, बस वही है। आपको कभी अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है जो किसी बच्चे के साथ आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करने को मिला हो, जहाँ पे आपने उनकी हेल्प की हो या फिर कुछ उनसे आपको सीखने को मिला हो, सम इंटरेस्टिंग केस? जैसे एक बच्ची थी कोमल, तो उसको एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी होने लगती थी। बड़ी अच्छी लड़की थी वो, जी। बहुत एकेडमिक एक्सीलेंस में टॉप थी, लेकिन वो एग्जाम के पहले उसको ना फीवरिश होने लगता था। तो उसको लगता था कि मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगी। तो उसको थोड़ा सा कंसोल करो, कोमल यू आर कोमल, यू कैन बीट एनीवन, यू हैव द एबिलिटी टू डू सो। थोड़ा उसको पैट करो, थोड़ा उसको मोटिवेट करो। थोड़ा सा आवाज सुन के वो मोटिवेट होती थी। अच्छा लकेड़ा मैडम आए हैं, अच्छा क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं हुआ, अच्छा चलो यू हैव दिस पेपरमेंट खाओ, डीप ब्रीथ लो। तो हमने उससे सीखा कि थोड़ा काउंसलिंग करके बच्चे ने पेपर अच्छे से कर लिया। जहां उसको एंजाइटी हो रही थी, थोड़ा से पैनिक सी हो रही थी कि अनेबल टू डू, अनेबल टू अटेम्प्ट द पेपर, 15-20 मिनट उसको बाहर रोका, आराम से उससे बातें करी। बात करके जब उसको देखा कि नाउ शी हैज बिकम टू द नॉर्मल लेवल, देन शी स्टार्टेड डूइंग पेपर। तो हमने सीखा कि कितनी पेशेंस है इसके अंदर, देखो। जी हमेशा पेशेंटली वो काम करती थी, पर आज कैसे रेस्टलेस हो गई है, अटैक, जो सडन एग्जाम का जो स्ट्रेस उसके ऊपर आया, उससे ही बेचारी ये हो गई। लेकिन उस लड़की में बहुत पेशेंस था। गर्मी हो सर्दी हो अपना क्लास में बैठी रहती थी, बाहर भी नहीं जाती थी। तो एग्जाम के दौरान तो हमने उसको काउंसिल किया, लेकिन उससे मैंने पेशेंस रखना सीखा कि पेशेंस उसका एक वर्च्यू था। किसी से झगड़ा नहीं, बोलना नहीं, किसी से मिक्सअप भी नहीं होती थी, बस चुपचाप रहती थी। बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे बात करते भी याद भी आ गई उसकी देखो कोमल की।
तो ऐसे कई बच्चों से आप कई चीजें सीखते हैं। जैसे आप ये सीखते हैं कोऑपरेशन। बच्चे ये आपस में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं कितना कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। जब उनकी वैन आती है ना तो ये सब लाइन बनाते हैं, सब एक दूसरे के पीछे से कपड़े पकड़ लेते हैं कि लाइन से इधर उधर ना हो जाए, और नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4, कोई मिसिंग तो नहीं है। इस तरह से वो अपनी वैन में जाते हैं। जिस बच्चे के पास जो एबिलिटी होती है वो उसका यूज करता है। जिसके पास आंखें वो आगे चलेगा, जिसके पास कान है सुन रहा है कि वाह गाड़ी आ गई। तो इस तरह से कलेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम बच्चों से भी सीख लेते हैं। इन बच्चों के पास देखो कितनी अच्छी मुस्कान है, कितना अच्छा पेशेंस है। ये बिल्कुल एंजाइटी नहीं करते, इनमें होती नहीं है। बाकी बच्चे देखो घंटी बजी नहीं तो दौड़ 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 एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए भाग रहे हैं। ये पेशेंटली निकलते हैं आराम से, इन्हें पता है दे विल गेट हर्ट। तो हम लोग भी उनसे सीखने की हिम्मत रखते हैं, और सीखना भी चाहिए। इनके अंदर जो वर्च्यूज है नॉर्मल बच्चों में नहीं होंगे। कोई कंपैरिजन है ना, कोई उनका तू तड़ाक है, बस हंसेंगे तो हंसते ही रहेंगे, और गाना गाएंगे तो गाना गवा लो इनसे, एक के बाद एक गाते रहेंगे भजन। बहुत अच्छे अच्छे भजन गा देंगे। मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। तो इनकी तो इतनी स्पेशल क्वालिटीज हैं, दे आर एबल इन सम वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनकी जो That's so great. एट्रीब्यूट्स हैं कुछ तो बहुत हद से ऊपर, कुछ तो भाई कमी है वो तो है ही, पर वो कमी जाहिर नहीं होने देते। भाई कुछ में तो कमी दिखाई पड़ती है, जो कुछ नहीं करते, जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। पर बाकी बच्चे एक दूसरे को देख के सपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पे उनकी कम्युनिटी रहती है ना, नैब वगैरह एसोसिएशन में, बढ़िया करते हैं काम। तो नो इशू लाइक दैट, दे आर हैप्पी एंड कंटेंटेड। कंटेंटमेंट इतना अच्छा गुण है इनके पास कि हम सबको सीखना चाहिए। संतोष, दिल से संतोष, और दिल से संतोष रखते हैं तो किसी चीज की उनको हाय तौबा नहीं है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसे वाले। जैसे आपने अपने स्टूडेंट से सीखा है वैसे ही आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने आपसे जितना सीखा होगा उतना पता नहीं किससे सीखा होगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आप आज मेरी भी टीचर बन के आए हैं यहाँ पर। अरे सुना, आपने तो मेरा दिन बना दिया, यू हैव मेड माय डे। देखो अगर कोई सीखने को तैयार है ना, उसका मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस है। गुरु तो हमेशा देने को तैयार है, सीखने वाला तैयार नहीं होता। और आदमी का ये अहम जो है ना, ईगोइज्म, ईगो जिस दिन तोड़ जी। देता है वो जीवन में बहुत ऊंचा उठता है। हमारी तो उम्र हो गई, तुम जैसे नए बच्चे जीवन को आगे बढ़ाओगे। और बड़ा अच्छा लगा व्हेन यू हैव सेड दिस कि आई हैव बिकम अ टीचर ऑफ योर्स। दैट इज माय प्लेजर कि यू आर नाउ माय स्टूडेंट। अगर ऐसा आपको मौका मिले कि आप एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लेके आ सकती है, तो आपको क्या लगता है व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन द करंट एजुकेशन सिस्टम? करंट एजुकेशन सिस्टम में टेक्स्ट बुक ऐसी बनाओ कि सीधा वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े। टेक्स्ट बुक थियोरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल हो। अभी जो हमारा सरकार का एजेंडा है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई है, उसके आधार पे नई टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। और जो सालों से पुरानी किताबें चल रही है ना उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। नई अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो। ये अप्रोच सीधा हमें जोड़े जीवन से। अगर हमने साइंस में फ्यूज लगाना सीखा है, पढ़ा है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा नेगेटिव और माइनस, यानी प्लस और नेगेटिव जो उसका ये है वो सीखे प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ना, जिससे वो छोटा मोटा काम कर ले, ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग कर ले। प्रैक्टिकल अप्रोच वाली चीजें लगाओ, साइंस का सारा कुछ हटा के ये ऐसी चीजें डालो कि वो आज की तकनीक से अपने आप को जोड़ो। इस तकनीक से जहां जुड़ेगा तो वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी रिपेयरिंग का काम हो, ऐसा स्किल सिखाओ। मशीन चलाने का स्किल सिखाओ। पढ़ा 5 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, उसका क्या यूज है? वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि आपकी हाथ की मसल्स चलें, पर आपको लाइफ को स्किल के साथ तो जोड़ना है। तो जितना थियोरेटिकल है उसका 70% तो आप प्रैक्टिकल रखो, या 60-40 रखो। ऐसा कुछ होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। पूरा रेवोल्यूशनाइज्ड करना चाहिए, पूरा नई क्रांति लानी चाहिए।
और पूरे स्टेट से एजुकेशनिस्ट को, एकेडमिशियंस को, टीचर्स को मिला के इस पे सोच रखनी चाहिए। नई सोच, नया विजन कि एजुकेशन में बुक्स तो अगर नहीं बना रहे हैं तो हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। चाहे वो भाषा का संवाद हो, चाहे वो हिंदी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो, सब बदलनी चाहिए। चाहे वो साइंस की, वो नई चीजें डालो ना। अब साइंस में एआई आ गया है, तो क्या वो सालों पुरानी किताबें पढ़ते रहेंगे? आप बताओ, नई अप्रोचेस के बारे में बताओ कि बिल्कुल क्या भी नहीं। चीज बच्चा, नई अप्रोच तो सीखनी चाहिए ना उसको। तो जब आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वगैरह में आएगी तभी चीजें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। नहीं तो ये तो बातें होती रहेंगी, ऐसी बात, बात से बात तो नहीं बनेगी। इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा नई अप्रोच। अवेयरनेस तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, अवेयरनेस और चेंज के बाद तो उस चेंज पे काम जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ऑडियंस के लिए, इफ आपको कोई मैसेज हो, हमारे जो भी ऑडियंस है उनमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब लोग हैं, राइट? सो इन लोगों के लिए आपके पास अगर कोई मैसेज हो, आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज शेयर। मैसेज यही है कि सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस पे काम करो, बॉडी पे काम मत करो, माइंड एंड हार्ट पे काम करो। एबीसीडी आपका जो पॉडकास्ट की सीरीज है, 4 लेटर्स दिए हैं, यानी ए इज द बिगनिंग, अभी 4 दिए हैं। तो अभी आपने ए भी नहीं सीखा है। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप enjoying द पॉडकास्ट विच दिस टीम इज टेकिंग इनिशिएटिव। इसको आप देखें, देखने के बाद इम्प्लीमेंट करें, सुने और समझें। वंस द मोमेंट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या बोला है, उससे फायदा नहीं है, उसको सुन के उसका 10% उतारने की कोशिश करें। दैट इज, बी हैप्पी, बी सेफ, और बस बहुत सारी शुभकामनाएं, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीष। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और हर दिन कुछ नया करिए। ये लाइफ की जीवंतता है। जैसे अभी आपका जुलाई है, सावन का महीना है, एक पेड़ जरूर लगाइए, अपने घर में लगाइए, और वो पेड़ आपको ऑक्सीजन भी देगा, आपकी आंखों को सोले, बहुत शांति देगा। आपके घर में जगह नहीं है, कैंपस में जगह नहीं है, आप अपने घर में लगा लो। मेरे हर रूम में पेड़ होगा। ये देखो मेरा एक पेड़, एरेका पाम, सी हाउ लवली इट इज। रियली रियली क्वाइट लवली। मेरी बालकनी पूरी फूलों से बनी हुई है, पूरी ग्रीनरी है। बेडरूम हो, वॉशरूम हो, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, जेड प्लांट, उसी को लगा दो। लो मेंटेनेंस प्लांट है, छोटे राइट। से पॉट में लगा दो, बहुत घना हो जाएगा। तो जैसे ही आप जेड प्लांट लगाओगे ना, उसकी जैसे जैसे पत्तियां बढ़ेंगी, तो यू विल गेट अबंडेंस ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल है। किसी वीडियो में पेड़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप पेड़ जरूर लगाना। जुलाई में मदर अर्थ कहती है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, यू विल नॉट गेट दी ऑक्सीजन, कहाँ से लाओगे सांस, तो इसीलिए पेड़ लगाओ। यही एक मैसेज है, और इसको हल्के में मत लेना, इसको बिल्कुल भी। बहुत सीरियसली लो। पेड़ लगाओ, अपने लंग्स को सुरक्षित करो। पेड़ हमारे लंग्स हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। ऐसा ना हो कि धरती खत्म हो जाए पेड़ों से, तब आप सोचो व्हाट टू डू। तो डू इट जस्ट नाउ, दैट इज द मैसेज फॉर ईच एंड एवरी वन, हम सब के लिए। और आज मैंने ये मैसेज स्कूल में भी कहा है अपनी क्लास वालों से कि बेटा हम लोग कल पेड़ लगाएंगे। तो ये अच्छी शुरुआत है, और इसमें बिल्कुल कोई बुराई भी नहीं है। आप नर्सरी से खरीद लो, पड़ोसी से ले लो, लेकिन करो जरूर, 100 रुपए जरूर खर्च करो। सही बात है। As you all say, like change starts at home, right? Thank you so much, ma'am.